Hello, future officers. Good evening. So, I hope all are doing great and all are studying with your great efforts for your exam. So, and how's winter going on in your cities and states? Tell me about that in comment section because in my city there's lot of cold in at the मॉर्निंग टाइम सो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है सो as we know yesterday I completed festivals of India and national parks and wildlife sanctuaries. All these three topics are completed in your static portion for as FCAT CGL means just it's important. Now you are very amazed that how I anticipate that these topics are very important and uh, what kind of questions can be generate and कैसे पूछे जाएंगे. So as I told that I had cleared 2 times NDA and 1 times Air Force and 1 time Navy. So that's why I know the pattern of exam कि NDA CDS में किस टाइप का पूछेंगे वो लोग. Because UPSC mostly statement wise पूछती है, so national parks and wildlife sanctuaries is very important for UPSC perspective. And if I talk about the festivals of India, so in ND or CDS, it will not ask most probably from festivals of India. If they will ask, so statement में ही पूछेगा या फिर मैच द फॉलोइंग्स में पूछ सकता है. बट आई कांट से कि फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूपीएससी में आएगा. बट फॉर सीजीएल एंड एफकेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एफकेट का आने वाला है, सो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द स्टैटिक सेक्शन फॉर योर एफकेट एग्जाम. So I accrue all the important topics for FCAT perspective. So you don't worry about that. I will cover all the static portion for in upcoming days, and you will get some of the questions from these topics. So before moving ahead, please like and subscribe my video and acute your learning because it's very important and revise again and again. So आज करते हैं. Today we will do classical dances of India. Classical dances and folk dances होते हैं. So tomorrow I will continue with folk dances and martial dances. Now talk about what is the difference between classical dances and folk dances. So according in my opinion, like classical dances is one of every state. Like हर स्टेट का एक एक रहता है. बट folk dances are lot of different states. Like एक ही स्टेट के 3-4 हो सकते हैं. एंड क्लासिकल डांसेस बाय संगीत नाटक अकेडमी, देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया. 8 है हमारे संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग. बट इफ आई टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दे टोल्ड देयर आर 9 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया. इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था क्लासिकल डांसेस का, ये लिखा किस में? It was text in the नाट्य शास्त्र which is written by the भरत मुनि. It's also known as the fifth Veda. वैसे फिफ्थ वेदा अगर कहेंगे सो फिफ्थ वेदा इज महाभारत. इसको भी कंसीडर कर लेते हैं. आई सर्च ऑन गूगल, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स अबाउट दैट. दे आर सेइंग कि ये भी फिफ्थ वेद है, ये भी फिफ्थ वेद है, बट महाभारत इज मेन. और अभिनय दर्पण में इसकी मुद्रा बताई गई है. जैसे इन एवरी क्लासिकल डांस देयर इज डिफरेंट मुद्रास कि इस तरीके से नमस्कार करेंगे, इस तरीके से ये करेंगे. सो डिफरेंट काइंड ऑफ मुद्रास इन एवरी क्लासिकल डांसेस. सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन अभिनय दर्पण. ये यू शुड रिमेंबर दैट बिकॉज ये इट कैन आस्क्ड सीरियल में पूछा हुआ है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्लासिकल डांस विच इज़ भरतनाट्यम. भरतनाट्यम सभी all are familiar with Bharatnatyam. And so Bharatnatyam, where we celebrate, Bharatnatyam is celebrated in Tamil Nadu. It is the oldest dance in classical dances. अभी लेटेस्ट कौन सा डांस है आई विल डिस्कस लेटर. बट द ओल्डेस्ट डांस इज भरतनाट्यम. इस व्हाट्स द ओल्ड नेम ऑफ भरतनाट्यम? इसका ओल्ड नेम है सदीरट्टम. ओल्ड नेम है इसका सदीरट्टम, तेवरट्टम एंड पराथियाट. These are the 3 names, old names of Bharatnatyam. They can ask. And Bharatnatyam is a solo dance. इसलिए we say that
एक आर्य। एक आर्य किसको कहते हैं? भरतनाट्यम को, बिकॉज इट परफॉर्म्स सोलोली। इट्स अ फॉर्म ऑफ सेवेटी एंड वैष्णविटी। मीन्स ये किसके लिए डिवोटेड है? इट इज़ डिवोटेड फॉर शिव जी एंड विष्णु जी, बट मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट स्पेसिफिकली ये शिव जी को डिवोटेड है। एंड इसका डिस्क्रिप्शन किस में दिया हुआ है? सिलपट्टिकरम। और ये किसने लिखी है? मणिमेगलाई में दिया। इसका डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। ये मोस्टली टेम्पल्स में की परफॉर्म किया जाता है। और 1910 में इसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, बट अगेन इट परफॉर्म। सो 1910 में ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था भरतनाट्यम को। ये मोस्टली इट परफॉर्म्स इन टेम्पल्स। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट exponent of Bharatnatyam, like who perform this classical dances, means famous personalities. So Alaram Valley, Rukmani Devi, he is very popular. Arandale and Padma Subramanya, Meenakshi Sundaram Pillai, Mrinalini Sarabhai और मलाइका साराई। रुक्मणी देवी है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन राज्यसभा। एज वी नो कि प्रेसिडेंट ऑल्सो क्या बोलते हैं, नॉमिनेट करते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करते हैं उनको, जो एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा उन लोगों ने इमिनेंट है ऑलरेडी, मतलब बहुत फेमस है। लाइक लिटरेचर में कोई किसी में, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर हैं, हमारे कुछ एक्ट्रेस वगैरह हैं। सो दे आर ऑल्सो इन राज्यसभा। सो कैसे रहते हैं? बाय द नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कमेंट करना कि ये किस आर्टिकल में मेंशन है। एंड शी ऑल्सो गॉट पद्म भूषण इन 1956। ये करना क्योंकि ये रिलेट करके पूछ लेते हैं। पद्म भूषण मिला है 1956 में। इसकी और एक्सपोनेंट्स हैं बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके भी डेथ हुई है। लीला सैमसन, शांता धनंजय एंड सोनल मानसिंह। शांता धनंजय एंड बीपी धनंजय, 2 हैं ये। बीपी धनंजय, यहाँ पे धनंजय था वो मैंने हैशटैग लगा दिया था। सोनल मानसिंह, रामा वैद्यनाथन, मीनाक्षी चितरंजन एंड नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण। सो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं हु परफॉर्म्स भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह ये उड़ीसी से भी रिलेटेड है। इसमें से कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो 2 डांसेस से रिलेटेड, लाइक सोनल मानसिंह है, शी इज़ रिलेटेड टू उड़ीसी ऑल्सो, एंड शी इज़ द यंगेस्ट recipient of Padma Bhushan, means she is the youngest girl who got Padma Vibhushan. So she is youngest. यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी हैं, कुचिपुड़ी से भी हैं। जस्ट लाइक सिमिलरली जो पद्म सुब्रमण्यम है, इन्हें भारत नृत्यन के लिए भी बोला जाता है। इन्हें एक डांस और इन्वेंट किया था विच इज़ भरत नृत्यन। और जैसे कौन थी अभी, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड मलाइका साराभाई, दीज 2 वुमेन्स रिलेटेड टू कुचिपुड़ी ऑल्सो। और सोनल मानसिंह एंड अलाराम वैली रिलेटेड टू उड़ीसी। सो ये 2 डांसेस से रिलेटेड है। ये मोस्टली तंजौर जो फैमिलीज़ रहती हैं, सो उनको तंजौर कहा जाता है। वहाँ पर जो तंजौर की फैमिलीज़ रहती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसको परफॉर्म करती हैं। सो उनको हम क्या कहते हैं? नटुवनास कहते हैं। जो परफॉर्म करती हैं फैमिलीज़ को क्या बोलते हैं? नटुवनास। यहाँ पे स्टाइल कौन सी यूज़ होती है? पांडानुलर एंड वजूबूर, ये इसकी 2 स्टाइल्स है भरतनाट्यम की, पांडानल्लूर एंड वजूबूर। स्टेजेस कौन सी रहती हैं इसमें? ये स्टेजेस पूछ सकते हैं। सो दे आर अलरिप्पू, जियातिश्वरम, शब्दम, वर्णम, पादम एंड तिलान एंड मंगलम। So these are some stages of Bharatnatyam. It's very important because it can be asked. Now coming to second classical dance which is कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र में, और अगर तमिलनाडु में भी होता है तो ये तंजौर में होता है, जिसमें वहाँ पे भगवत मेला कहते हैं कुचिपुड़ी को। सो इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु बट इट इज़ रिनेम्ड
it is named by another name which is Bhagwat Mela. So इसका जो कुचिपुड़ी का मॉडर्न वर्जन है ये किसने बताया था? इसका मॉडर्न वर्जन है जो तीर्थ नारायणती, ये किसने दिया था? सिद्धेंद्र योगी. सो इट्स अ मॉडर्न वर्जन ऑफ कुचिपुड़ी. तीर्थ नारायणती ये दिया था सिद्धेंद्र योगी. अब इसके कुछ फेमस पर्सनैलिटीज. राजा रेड्डी, मोस्ट प्रोबेबली जो रेड्डी आता है, अगर रेड्डी आ गया तो समझ लो वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, बिकॉज आंध्रा ये साउथ साइड में इस टाइप के सरनेम्स मोस्टली वी गेट. सो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा, भावना, यामिनी, these all are रेड्डीज. अनदर आर वेमपता चिन्ना सत्यम, अपर्णा सतीशम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण, स्वप्ना सुंदरी, शोभा नायडू एंड हलेम खान. So these are some famous personalities of कुचिपुड़ी. So write down that all the personalities because इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि किस स्टेट से, बट उसकी पर्सनैलिटी रिकॉल करना इट्स वेरी तो नहीं कह सकते, बट इट इज़ लिटिल क्या बोलें, लिटिल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अचानक से एकदम से याद नहीं आता कभी कभी. नाउ थर्ड क्लासिकल डांस इज ओडिसी. इट इज़ सेलिब्रेटेड इट इज़ परफॉर्म्ड इन उड़ीसा. यहाँ पर मोस्टली जिनके सरनेम में मुहापात्रा है, मुहंटी आ जाता है, दे आर रिलेटेड टू उड़ीसी. जनरली ऐसे रिकॉल करना है इसको, सिंपल थिंग में कॉमनली यही हो रहते हैं. लाइक केलुचरण मुहापात्रा. केलुचरण मुहापात्रा को फादर ऑफ उड़ीसी कहते हैं. एंड इनके अलावा पंकज चरण दास, इन्हें भी फादर ऑफ उड़ीसी कहते हैं. अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन आए तो इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना. इफ़ दे प्रोवाइड बोथ द ऑप्शन, सो यू शुड गो विथ पंकज चरण दास फर्स्टली. नेक्स्ट शगुन भूतानी, गंगाधर प्रधान, माधवी मुदगल, विजयन सत्यपाती, संजुक्ता पनिग्रही, सुधाकर साहू, सुतापा तालुकदार. So these are the famous personalities related to Odissi. Now coming to the fourth classical dance which is Kathak. कथक कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? यूपी में. एंड इट इज़ रिलेटेड टू कथा मीन्स स्टोरीज. इट इज़ द डांस विच इज़ अ स्टोरी टेलिंग डांस. They can also ask which classical dance is related to stories. So that is Kathak. And this is only classical dance in which we get the feature of Persian elements also. Because Mughal Empire में भी ये वाला डांस काफ़ी परफॉर्म हुआ है. So that's why in this dance we get Persian elements also. कथक में 4 घराना से रिलेटेड है. आई विल डिस्कस एंड आई विल डू इन नेक्स्ट वीडियो अनदर वीडियो कि घराना क्या है, वो सब मैं बताऊंगी. सो 4 घराना से रिलेटेड कथक बनारस, जयपुर, लखनऊ एंड रायगढ़. नाउ दे कैन आस्क हु इज़ द फाउंडर ऑफ लखनऊ घराना. सो ईश्वरी प्रसाद इज़ द फाउंडर ऑफ लखनऊ घराना. अब इनके पर्सनैलिटीज़ देखते हैं. बिरजू महाराज, मोस्टली महाराज आया, सो दैट विल रिलेटेड विथ कथक. सो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छा महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, कामनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, दीज आर सिस्टर्स. नारायण प्रसाद, कलका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, विद्या गौरी आकर अदकर है. कुमुदनी लखिया, आदिति मंगलदास, कुमकुमधर, रोशन कुमारी. सो दीज आर द पर्सनैलिटीज रिलेटेड टू कथक. अभी जो बिरजू महाराज है, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बिरजू महाराज से कई बार क्वेश्चन पूछा है. बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, दीज 2 पर्सनैलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिरजू महाराज ने एक कलाश्रम बनाया था वो 1998 में. एंड ही ऑल्सो गेट पद्म विभूषण इन 1984. नाउ 5th क्लासिकल डांस इज मोहिनी अट्टम. दिस इज परफॉर्म्ड इन केरल. जो अट्टम वाले रहते हैं वो केरल से ही मोस्टली रिलेट होते हैं. सो इट्स ऑल्सो सोलो डांस. अभी मैंने कौन सा सोलो डांस बताया था? एक भरतनाट्यम. सो मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, दीज आर सोलो डांसेस. एंड इट इज़ मेनली परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स. भरतनाट्यम मेल्स मोस्टली करते थे एंड मोहिनी अट्टम मेनली बाय फीमेल्स. ये मेंशन है किसमें? व्यवहार माला में मेंशन है, बताया गया इसके बारे में. मोहिनी अट्टम का टेक्स्ट दिया है. एंड ये किसने लिखा है? मझा मंगलम नारायण, इनने लिखा हुआ है मझा मंगलम नारायण.
ये इंपॉर्टेंट है, सीरियल में पूछा हुआ था ये. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मोहिनीअट्टम, सो दैट इज टेवी टिचित्यम, नगाई नाटुकम एंड दाशियट्टम. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मोहिनीअट्टम. मोस्टली तम तम वाले मोहिनीअट्टम से रिलेटेड. इसके एक्सपोनेंट्स पढ़ते गोपी वर्मा, कनक रेली, सुनादा नायर, जयप्रभा मीनार, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, कल्याणी कुत्ती, अम्मा एंड ये मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है. इन्हें जो ये वाली अम्मा है, मतलब इनका सरनेम है, सो शी गेट केरला कल्याणम 1952. इट्स अ अवार्ड ऑल्सो. केरला कल्याणम एक अवार्ड है, सो इन्हें 1952 में मिला था. ये अवार्ड है या शायद कोई प्लेस है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. सो यू कैन सर्च ऑन गूगल व्हाट इज केरला कल्याणम. 1952 में मिला था इन्हें. नॉट टॉक अबाउट द 6 क्लासिकल डांस विच इज कथकली. सो कथकली केरल में सेलिब्रेट परफॉर्म होता है ये भी. इट इज़ बेस्ड ऑन द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत. सो राइट डाउन दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क. एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय मेल. देयर आर 5 फॉर्म्स इन कथकली: नाट्यम, नृत्यम, नृत्यम, एंड ये नृत्यम है, ये नृत्यम है, शंगुतम एंड वोद्या. दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ कथकली. कलशम किससे रिलेटेड है? कथकली से रिलेटेड है. टेम्पल में परफॉर्म होता है. इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर द सेशन. जो सेशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेवाकली सेशन. एंड जो कथकली है, इसकी जो वर्डिंग है, जो मतलब वो गाते हैं, सो इट विल इन हिंदी लैंग्वेज. हिंदी लैंग्वेज में उन्हें मतलब परफॉर्म किया जाता है, जो गाना गाते हैं इसमें परफॉर्मेंस में, सो दैट विल इन हिंदी लैंग्वेज. अब इसके एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं. मिलना सालिविनी, पीवी बालकृष्णन, कुंचुकुरु, गोपीनाथ, कोताकल, नंद कुमारा नैयर. पीवी बालकृष्ण इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ 7th मणिपुर. मणिपुरी कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? मणिपुर में. सो इट इज़ बेस्ड ऑन वैशिज्म. मीन्स दिस परफॉर्मेंस इज डिवोटेड टू द विष्णु भगवान. सो मणिपुरी को रासलीला भी बोलते हैं. फॉर्म इसके क्या है? जगोई एंड चोलाम. एंड जगोई फॉर्म है, इट इज़ परफॉर्म बाय फेमिनाइन, मीन्स फीमेल करती हैं. चोलाम को मैस्कुलिन करते हैं, मतलब मेल करते हैं. इट इज़ जनरली परफॉर्म बाय मेती ट्राइब. एंड दिस इज़ अ इंट्रोवर्ट डांस फॉर्म. मतलब उसमें ज़्यादा बोला नहीं जाता, मतलब जैसे भरतनाट्यम में एकदम आँखों में आँखें डाल के परफॉर्म करते हैं ऑडियंस की में, बट इट इज़ इंट्रोवर्ट डांस फॉर्म. ये कौन परफॉर्म करता है? झावेरी सिस्टर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. झावेरी सिस्टर्स, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिंह. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चारू माथुर, देवगनी चलिया, अलुना कुबाइनी. सो these are the famous personalities related to Manipuri. Now talk about the Kshatriya dance. Kshatriya, it is performed in Assam and it is founded in 2000. So which dance is classical dance is latest? So this is Kshatriya dance, and the oldest classical dance is Bharatnatyam. So the father of Kshatriya dance is Shrimanta Shankaradev, and it is performed in बोरगीत. मतलब एक बोरगीत सॉन्ग है, जो मतलब बोरगीत वो गाते हैं वहाँ पे, असमीज में कहते हैं. सो बोरगीत में कहता है. एंड ये डांस किसको मिलके बना है? अंकिय नाट एंड भावना, इन दोनों से मिलके क्षत्रिय डांस बना है. एंड इसकी थीम क्या है? वैश्विज. मीन्स ये लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है. क्षत्रिय डांस के फॉर्म्स क्या है? चली, झूमरा, नाडुभंगी. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ क्षत्रिय डांस. सो इसकी थीम क्या है? लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड. मीन्स ये लॉर्ड कृष्णा को डिवोटेड है. अब इसकी कुछ पर्सनालिटीज़ का लेते हैं. जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घानाकंटा बोरा, इंदिरा बोरा एंड मोनीराम दत्ता. जो भूपेन हजारिका है, ही गॉट भारत रत्न इन 2019. सो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ थी. सो आई होप all enjoyed my video. I hope now in the next video I will cover the folk dances and the martial dances which are celebrated and which are performed in India in different states. So please like and subscribe my video and do shares with others. देखो
important topics में आई एम कवरिंग.